Hi friends, welcome to DM classes. Last session we have completed practice set 2.2. Now today we will start with root of positive rational number and surds. Root of positive rational number. If n is a positive integer and x to the power n equal to a, then x is the nth root of a, x equal to nth root of 2. This root may be rational or irrational. For example, 2 to the power 5 equal to 32, therefore 2 is the nth root of 32. But if x to the power 5 equal to 2, then x equal to nth root 2, which is an irrational number. Surds. If n is an integer greater than 1, if a is a positive real number and nth root of a is x, then it is written as x to the power n equal to a or nth root a equal to x. Definition. If a is a positive rational number and nth root of a is x, and if x is an irrational number, then x is called a surd. In a surd, nth root a is symbol, root is called radical sign, n is the order of the surd, and a is called radicand. Now, similar or like surds. If p and q are rational numbers, then p root a, q root a are called like surds. Two surds are said to be like surds if their order is equal and radicands are equal. For example, root 2 minus 3 root 2, 4 by 2 root 2 are like surds. Let us start. Practice set 2.3. Question number first. State the order of the surds. Order of the surds. Given below. First, cube root 7. Second, 5 root 12. Third, 4th root 10. Fourth, root 39. And fifth, cube root 18. Answer. First, order of the surds. Order of the surds फर्स्ट क्वेश्चन के लिए होगा 3. हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सर्च में वही वैल्यू लिखनी है जो कि इस रूट में यहाँ अंदर की तरफ लिखी होती है. कई वैल्यू यहाँ बाहर की तरफ लिखी होती है, लेकिन हमें इस वैल्यू को ध्यान नहीं देना है. हमें सिर्फ यहाँ अंदर की तरफ जो वैल्यू लिखी होती है वही लिखना है, क्योंकि यही होता है ऑर्डर ऑफ द सर्च. अब अगर हम सेकंड के लिए देखें, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो 3 लिखा था तो हमने 3 लिख दिया, ऑर्डर ऑफ सर्च इज 3. बट सेकंड के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ सर्च 2 लिखेंगे. जब भी किसी में अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो उसे हम 2 ही मानेंगे. आंसर ऑफ थर्ड इज 4. मीन्स ऑर्डर ऑफ सर्च इज 4. फोर्थ, order of the surds is 2. Fifth, order of surd is 3. Question number second. State which of the following are surds. Justify. First, cube root 15, 51. Cube root 51. Answer. Cube root 51 is a surds because
51 is a positive rational number. Positive rational number. 3 is a positive integer. Integer greater than 1 and cube root 51 is irrational. Solution of second. Fourth root 16 is not a surd because fourth root 16 equal to 16 to the power 1 by 4 means 2 into 2 into 2 into 2 to the power 1 by 4 is the simplest form of 16. 2 to the power 4, 1, 2, 3, 4 means 2 to the power 4 to the power 1 by 4. 4, 4 cancel equal to 2. Which is not an irrational number. Solution of third. Fifth root 81 is a surd because 81 is a positive rational number. Positive rational number. 5 is a positive integer greater than 1 and 81 is irrational. अगर कोई वैल्यू का हम रूट निकालते हैं और वो रूट के बाहर अगर वैल्यू आ जाती है तो वो वैल्यू सर्ट नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हमने 16 को सिंप्लीफाई करके देखा तो सिंप्लीफाई होकर उसका आंसर 2 आ गया, मतलब ये वैल्यू सर्ट नहीं है और ये इरेशनल नंबर भी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ 81 और 51 का हम इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। जिन नंबर को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो सर्ट होती है और उसे हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लासिफाई द गिवन पेयर of surds into like surds and unlike surds. First, root 52 and 5 root 13. Root 52 equal to 13 into 4. 13 4 is 52 means 13 into 4.
इक्वल टू √13 इंटू √4, √4 इक्वल टू 2 √13 बिकॉज √13 इंटू √4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2। Here the order of 2√3, 2√13 and 5√13 is same, and their radicands are also same. Therefore, √52 and 5√13 are like surds. यहाँ पर हमें दो सर्च दिए हुए थे, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो वैल्यू बड़ी है उसे सिंप्लीफाई करके देखना है कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं, और जब सेम आती तो हम उसे कहते हैं कि लाइक सर्ड है, और अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं आती है, दोनों की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों वैल्यू सेम नहीं आ पाती है, तो वो अनलाइक सर्ड्स कहलाती है। सेकेंड सॉल्यूशन, √68 and 5√3, 68 equal to 4 into 17 equal to √4 into √17, √4 को हम सिंप्लीफाई करके 2 लिख सकते हैं, इंटू √17 मीन्स √17 ही रहेगा। Here the order of 2√17 and 5√3 is same, but their radicands are not. Their radicand are not. Therefore, √68 and 5√3 are unlike surds. यहाँ पर हमने 68 को √68 सिंप्लीफाई किया तो 2√17 आया। यहाँ पर रूट की वैल्यू 5√3 थी। अगर यहाँ पर भी √3 आता तो हम इसे लाइक सर्ड कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर √17 और यहाँ √3 है, तो इसे हम लाइक सर्ड नहीं कह सकते। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4। Simplify the following surds. First, √27। अब हमें यहाँ पर √27 को सिंप्लीफाई करना है, मतलब यहाँ हमें √27 में 27 का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो इसे हम 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब हम यहाँ से हम 2 2 का पेयर निकाल के वैल्यू को बाहर निकालते हैं। तो एक 3 का हमने पेयर बनाया, 3 बाहर निकाला, अंदर की तरफ एक 3 बच रहा है, उसे हमने लिखा √3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3 आंसर। मतलब √27 का सिंप्लीफाई होगा 3√3। सेकेंड, √50।
रूट 50 को हम सिंप्लीफाई करके 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 2। इट इज अ सिंप्लीफाई ऑफ रूट 50। थर्ड, 250 रूट 250। अब हमें यहाँ पर इसका भी एलसीएम फाइंड करना होगा। यहाँ मैं एलसीएम फाइंड करके आपको दिखा देती हूँ एक बार। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10, 2 6 जा। अब यहाँ पर 5 वैल्यू है, मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हम इसे 2 से फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसे हमें 5 से करना होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। आंसर आया है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर भी जो पेयर बन सकते हैं हम पेयर बना लेंगे। 5 5 के पेयर बने, यहाँ 2 और 5 के तो पेयर बन नहीं सकते हैं, तो इसे ऐसे रहने देंगे। इक्वल टू 5 बाहर, अंदर की तरफ बचेगा 2 इंटू 5 मीन्स 5, 2 इंटू 5 मीन्स 10, रूट 5 रूट 10 आंसर। फोर्थ, रूट 112। 112 यहाँ पर रूट 27 और रूट 50 छोटी वैल्यू थी, तो इसके लिए मैंने इसकी यहाँ पर एलसीएम फाइंड करके नहीं दिखाया है। बड़ी वैल्यू जो है उसको मैं एलसीएम करके दिखा रही हूँ। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो यहाँ 112 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। टू 2 के पेयर बनाए हमने, तो 2 इंटू 2, 2 पेयर बने हैं, मतलब कि 2 2 बाहर निकलेंगे, रूट 7। 2 2 जा 4 रूट 7 आंसर। फिफ्थ, रूट 168, 168, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें यहाँ पर वापिस पेयर बनाने होंगे, तो ये एक पेयर बनेगा 2, अंदर की तरफ बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो 2 रूट 42। इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूट 168। Thank you. If you like the video, please press the bell icon.